अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous video we were discussing about the lesson number 6, test and exam. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter, that what is test and exams. Examination is a test of a person's capacity, knowledge and ability. It proves what standard of learning a person has acquired during a specific period of time in a specific syllabus. It is the most hated and most shunned thing on or some students who never like to indulge in it with pleasure until they have a charm of acquiring a degree. Otherwise, they compare it with a nightmare. Yet examinations are not totally devoid of good. There is a saying about it. Trials area veritable curse, but they have their use. The system of education of mostly examination ridden, which aims at the test of achievements and success. The examination is the center of studies and hard work. It is a motivational force to work. Its importance and efficacy have been called in question. The most important points is that examinations are not the real test of knowledge and understanding. They are the test of ignorance and cramming. Still, we can say that examinations are necessary evil which cannot be avoided. Examinations have many uses. They help us find the most efficient individual among many. We can distinguish between the scholars and the dullard, genius and duns. In this way, they help us discriminate between the genuine gold and the sparkling brass. Secondly, the examinations compel us to work hard. The careless students become serious near the examination. They buy books they had no intention to buy and grid up their lines. It is a fact that many students read for the sake of examinations. Thus, examinations are a very effective way of goading students to read. Thirdly, examinations are proof of and guarantee of man's efficiency. They provide us a proof of the fitness of the student for promotion to a higher grade or class. An employer can safely entrust a job to the degree holder. Without a degree, no one will hire his services. The factories, industries, or mills cannot allow the person to perform a technical task without a specific degree or course. Similarly, we do not ask everyone to prescribe medicine for us. Only the person holding a degree enjoy the right to operate upon our body. Hence, if we abolish examination, we shall have to abolish degrees or diplomas. Examinations have criteria abuses as well. Many students consider it a curse. They consider them to be a game of chance. The students are never sure of their success. There are always doubts in their minds. Success does not depend upon preparation. Even a student with selected studies may pass, and the student with the thorough preparation may fail. Some students keep studying the whole session but fail. On the other hand, many others who buy help books and cheap notes near the examination and cram a few questions pass. Such examination are a curse for the shining students. The examinations are a test of nerves. All examinations have a limit
of time and place. A student is tested at a bad place and in a bad manner. The question arises how a student's hard work and worth for a semester or full 1 year is judged in a short time. They are never a foolproof test of one's ability. They are the test of one's memory and writing or typing speed. Some students try to use unfamiliar or unfair means to pass out the examination. The innocent, hardworking, and intelligent remains in the background. But in spite of all this, we cannot say that there should be no examination. There must be some proper way of judging the real worth of the students. So, proper changes are required to avoid the abuses and increase the usefulness of the examinations. The assessment criteria of the examination must be improved in such a way that all the students can show their abilities and can pass them without any fear. So, student, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First one is vocabulary. A question: what do you understand by a morning lark or a night owl? आप मॉर्निंग लार्क और नाइट ऑल इन फ्रेजेस से क्या मतलब समझते हैं? सो द आंसर इज मॉर्निंग लार्क मीन्स द स्टूडेंट हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर फॉर इट्स एग्ज़ाम। सुबह के चंडूल से मुराद वो तालिब इल्म है जो सुबह सवेरे उठकर इम्तहान की तैयारी करता है। एंड नाइट ऑल मीन्स दैट स्टूडेंट हु प्रिपेयर फॉर हिज एग्ज़ाम एट नाइट। और रात के उल्लू से मुराद ऐसा तालिब इल्म है जो रात को जाग कर इम्तहान की तैयारी करता है। बी क्वेश्चन: फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द थ्रेशर। इन तमाम दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ तलाश करने हैं हमने। फर्स्ट वन फॉर्मल, रस्मी। सिनोनियम है इसके सेरेमोनियस, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, स्टिफ। नेक्स्ट वन नर्वस यानी कि परेशान, टिमिड, टिमोरियस, शेकी। स्ट्रेस, तनाव और ज़ोर। इसके सिनोनियम है स्ट्रेन, एम्फेसिस, प्रेशर, फोर्स। नेक्स्ट वन लेयर मतलब फुर्सत, वोकेशन, रिसेस, फ्रीडम, ईज। नेक्स्ट वन डिस्ट्रैक्ट मीन्स परेशान। इसके सिनोनिम हैं डिस्टर्ब, परप्लेक्स, बिविल्डर। नेक्स्ट वन रैम्बल मटर गश्त करना या इधर उधर फिरना मीन्स एक्सकर्शन, टूर और जॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। तो फ़ीमा इबारत के लिए मुताले में से है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट वन द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ 1 इज़। पैराग्राफ 1 का मेन आइडिया क्या था? तो वो था टेस्ट के बारे में। सेकंड द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़। पैराग्राफ 2 का मेन आइडिया क्या था? एग्ज़ाम्स। थर्ड वन पैराग्राफ 3 शोज स्पोर्टिंग डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ। पैराग्राफ 3 जो है वो कौन सी डिटेल्स बता रही थी हमें? एग्जाम्पल्स दे रही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी समराइज द लेसन बाय कंप्लीटिंग दिस फ्लो चार्ट। हमने इस चैप्टर को समराइज करना है या उसकी समरी लिखनी है इस चार्ट की मदद से, सबक का खुलासा लिखना है। सबसे पहले टाइटल देना है, फिर स्टेप 1 के अंदर यूजेस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम लिखने हैं कि वो कैसे इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, फ्यूचर को प्लानिंग में कैसे हेल्प करते हैं, और प्रोग्रेस यानी कि हमें क्या प्रोग्रेस शो करते हैं। और स्टेप 2 के अंदर हमने बताना है कि प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम कैसे की जाती है, कि तैयारी कैसे की जाए टेस्ट की। पहले प्लानिंग टाइम टेबल बनाएं, फिर उसके बाद टाइडी स्टडी एरिया, अपने स्टडी एरिया को साफ रखना है, और फिर वर्क अलोन और विद समवन, या तो अकेले काम करना है या दूसरों के साथ काम करना है। इन तमाम चीज़ों को जोड़कर एक समरी बनानी है चैप्टर की। तो समरी ये है बेटा, टेस्ट कैन हेल्प टू नो वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव, वेयर एज एग्जाम्स आर समथिंग दैट यू नीड टू पास। Tests let you know if you have understood that you have been learning. They also help the teacher to plan what more is needed to be done. Yes, I do feel nervous about tests and exams. I like written exams because with the help of these we can improve our knowledge and written skills. I can study the best at night because at night there is a peaceful atmosphere without any disturbance. टेस्ट ये जानने के लिए मदद कर सकते हैं कि आपकी मौजूदा काबिलियत क्या है और इसमें बेहतरी लाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है।
जबकि आपको पास होना होता है। इम्तहानात में आपको कामयाबी की ज़रूरत है। टेस्ट से आपको मालूम होता है कि आप वो सब कुछ समझ चुके हैं जो आप पढ़ते रहे हैं। वो असातिज़ा की इस बात में मदद करते हैं कि मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं टेस्ट और इम्तहानात के बारे में परेशानी महसूस करता हूँ। मुझे इम्तहानात का लिखने वाला तरीक़ाकार पसंद है, क्योंकि इससे हम अपने इल्म के साथ साथ लिखने के हुनर में भी बेहतरी ला सकते हैं। मैं रात के वक्त बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि रात के वक्त माहौल पुरसकून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्ज़ाम? टेस्ट और एग्ज़ाम में या इम्तहानात में क्या फ़र्क है? सो द आंसर इज़, टेस्ट कैन हेल्प टू नो वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव, वेयर एज एग्ज़ाम्स आर समथिंग दैट यू नीड टू पास। टेस्ट ये जानने के लिए मदद कर सकते हैं कि आपकी मौजूदा काबिलियत क्या है और इसमें बेहतरी लाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, जबकि इम्तहान जो है आपको पास करना होता है, इसमें आपको कामयाबी की ज़रूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम? टेस्ट और इम्तहानात की क्या अहमियत है? सो द आंसर इज़, टेस्ट लेट यू नो इफ़ यू हैव understand that you have been learning. They also help the teacher to plan what more is needed to be done. टेस्ट से आपको मालूम होता है कि आप वो सब कुछ समझ चुके हैं जो आप पढ़ते रहे हैं। वो असातिज़ा की इस बात में मदद करते हैं कि मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? क्या आप टेस्ट और इम्तहानात के लिए परेशानी महसूस करते हैं? सो द आंसर इज़ येस, आई डू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम। जी हाँ, मैं टेस्ट और इम्तहानात के बारे में परेशानी महसूस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम डू यू प्रेफर टू हैव एंड वाई? आप किस किस्म के टेस्ट और इम्तहानात देना पसंद करते हैं और क्यों? सो द आंसर इज़, I like written exam because with the help of these we can improve our knowledge and writing skills. मुझे इम्तहानात का लिखने वाला तरीक़ाकार पसंद है, क्योंकि इससे हम अपने इल्म के साथ साथ लिखने के हुनर में भी बेहतरी ला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन यू स्टडी द बेस्ट इन द डे और एट नाइट एंड वाई? आप कब सबसे बेहतर तरीके में पढ़ाई कर सकते हैं, दिन के वक्त या फिर रात को? सो द आंसर इज़, I can study the best at night because at night there is a peaceful atmosphere without any disturbance. मैं रात के वक्त बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि रात के वक्त पुरसकून माहौल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, आर यू अ गुड प्लानर? मार्क, टिक और क्रॉस इन द बॉक्सेस। क्या आप एक अच्छे मंसूबा साज हैं? बॉक्स के अंदर टिक या क्रॉस का निशान लगाएं। फर्स्ट वन, आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी, गेम्स एंड टीवी। मैंने अपने पढ़ाई के लिए, खेल के लिए और टीवी के लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है। अगर आपने बनाया हुआ है तो इसके अंदर टिक करना है आपने। सेकंड, आई हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम वेयर आई डोंट कीप थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट मी। मैंने घर के अंदर एक ऐसा हिस्सा बनाया हुआ है जो कि साफ़ सुथरा होता है और मैं वहाँ बैठकर पढ़ता हूँ ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, तो टिक है ये। थर्ड वन, I work on the hard stuff first and prepare the subject I enjoy afterward. मैं सबसे पहले मुश्किल चीज़ों या मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ उसकी, और उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता हूँ जो कि मुझे अच्छे लगते हैं या इंजॉय करता हूँ। नेक्स्ट, फोर्थ वन, आई रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली। मैं दिए गए इम्तहानात के अंदर सवालात और हदायत को केयरफुली, एहतियात के साथ पढ़ता हूँ। टिक। फिफ्थ वन, आई चेक माई वर्क व्हेन आई हैव फिनिश्ड मेकिंग श्योर दैट आई हैव अटेम्प्टेड राइटली। मैं काम को ख़त्म करने के बाद अपने काम को दोबारा जांच पड़ताल करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने अपना काम ठीक तरीके से किया है या नहीं। सो टिक। नेक्स्ट, ग्रामर। मॉडल वर्ब्स। What are modal verbs? Modal verbs are those helping verbs which help to express the mode or manner in which the action is done. The modal verbs can, could, may, might, must, ought to, should modify the meaning of an expression. मॉडल वर्ब्स ऐसे इमदादी फ़ेल होते हैं जो तरीका या अंदाज के इजहार में मदद करते हैं जिसमें काम किया जाता है। इमदादी फ़ेल कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू या शुड जुमलों के मानी को बदल देते हैं।
मॉडल वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन। मॉडल वर्ब जो है वो सवाल मतलब के शुरू में आते हैं क्वेश्चन वाले उसके अंदर सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल, मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें जो मे है जो कि एक मॉडल वर्ब है, ये स्टार्ट में आ गया। नेगेटिव फॉर्म्स के अंदर मॉडल वर्ब्स हैव नॉट और नॉट आफ्टर देम इन द नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, मस्ट नॉट, नीड नॉट। ठीक है, मॉडल वर्ब्स हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं और उनके यूजेस बताए गए हैं। फर्स्ट वन, कैन। कैन की एग्जांपल, दे कैन कंट्रोल देयर ओन बजट्स। ठीक है, यानी कि वो अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस अगर हम नेगेटिव में करें, वी कांट फिक्स इट, हम उसे मुकर्रर नहीं कर सकते। तो ये कैन के एग्जांपल बताई गई हैं और इसकी यूज़ क्या है बेटा, ये अबिलिटी और इनअबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि काबिल होना और नाकाबिल होना। नेक्स्ट वन, कुड। कुड के अंदर देखें, फर्स्ट वन, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी। क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ। सेकेंड वन, ये क्या है, आस्किंग फॉर परमिशन। यहाँ पर क्या पूछी जा रही है, परमिशन की मतलब ली जा रही है। सेकेंड, कैन यू कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली। यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या आप अब मज़ीद आहिस्ता अपनी बात को दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। विल। विल की एग्जांपल क्या है, विल यू गो टू स्कूल टुडे। क्या तुम आज स्कूल जाओगे। आस्किंग, ये क्या है, पूछा जा रहा है उससे। वुड। वुड का एग्जांपल है, वुड यू गिव मी योर कैमरा। क्या तुम अपना मुझे कैमरा दोगे, देना चाहोगे। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है। मे आई गो आउट टू प्ले। क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ। तो ये क्या है, आस्किंग फॉर परमिशन, यहाँ पर इजाज़त मांगी जा रही है। सेकंड, रजिया इज़ लेट, शी मे हैव मिस्ड द बस। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी, इम्कान को जाहिर किया जा रहा है कि रजिया लेट हो गई है, शायद वो बस के इंतज़ार में रह गई है। नेक्स्ट वन, माइट। यू माइट फाइंड अजमल इन द लाइब्रेरी बट आई डाउट इट। तो यहाँ पर देखें, एक्सप्रेसिस वीक पॉसिबिलिटी, कमज़ोर इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि शायद अजमल आपको लाइब्रेरी में मिल जाए, लेकिन मुझे इस बात पर शक है। ठीक है, शायद का वर्ड यूज़ करें कि हो सकता है मिले और हो सकता है ना मिले। मस्ट। वी मस्ट से गुड बाय नाउ। हमें अब ज़रूर खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए, यानी कि नेसेसिटी, ज़रूरत के ऊपर जोर दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मेक अ नॉइज़ इन द लाइब्रेरी। तो ये ऑब्लिगेशन या प्रोहिबिशन बताया जा रहा है कि ऑब्लिगेशन होता है लाजमी और प्रोहिबिशन ममानत, मना कर देना, कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें लाइब्रेरी के अंदर शोर नहीं करना चाहिए। ought to, young people ought to help the old and sick people as much as possible। नौजवानों को बूढ़े और बीमार लोगों की जितना मुमकिन हो मदद करनी चाहिए। ये किस चीज़ की यूज़ है, ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि इखलाकी फ़र्ज़ की तरफ निशानदेही करता है ये। शुड, चाहिए। वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस। हमें फ़ौरन इस मसले को अलग कर लेना चाहिए। ये क्या है, सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, जो बात ठीक है वो की जाए या वो कहना जो दुरुस्त हो। सेकेंड वन, आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग। मेरा ख्याल है कि हमें हर चीज़ की पड़ताल करनी चाहिए। ये हमें रिकमेंडेड एक्शन, यानी कि किसी काम की सिफारिश की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, ए क्वेश्चन, यूज़ वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल ईच गैप। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो ये दिए गए हैं मॉडल वर्ब, इनको यूज़ करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट वन, दे डैश बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर आएगा बेटा कैन। ठीक है, दे कैन बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। सेकेंड, यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश। तो यहाँ पर आएगा मे, यू मे लीव नाउ इफ़ यू विश। थर्ड वन, कुड और मे यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज़। तो यहाँ पर आएगा बेटा कुड। ठीक है, कुड यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज़। फोर्थ वन, डैश यू स्विम। तो यहाँ पर आएगा कैन, पूछा जा रहा है कैन यू स्विम। फिफ्थ वन, लिसन प्लीज़ यू मे नॉट और माई नॉट स्पीक ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आएगा मे नॉट स्पीक ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम। नेक्स्ट, बी क्वेश्चन, दिस इज सारा एंड अलीज लिस्ट ऑफ हाउस chores टू बी डन दिस वीक।
ये सारा और अली के घर के छोटे बड़े कामों की फहरिस्त है जो इस हफ्ते के आखिर पर उन्होंने करने हैं। फर्स्ट वन, डस्ट द फर्नीचर, फर्नीचर की सफाई करनी है। सेकंड, स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर, बावर्ची खाने और गुसल खाने के फर्श पर झाड़ू फेरना है। थर्ड वन, मेक बेड्स, बिस्तरों को सेट करना है। फोर्थ, वॉश डिशेस, प्लेटें धोनी है। वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देना है। क्लीन लॉन, लॉन की सफाई करनी है। सेवंथ, वीड वेजिटेबल गार्डन, सब्जियों के बगीचे में से जड़ी बूटियों को तल्फ करना है। नाउ यूज सूटेबल मॉडल वर्ब्स फॉर from the list given below to fill in the blanks in the following sentences। हाँ जी, इनको यूज़ करते हुए हमने इन फिल इन द इन ब्लैंक्स को फिल करना है, इनको यूज़ करते हुए। फर्स्ट वन, दे डैश द डस्ट फर्नीचर दिस वीकेंड, तो यहाँ पर आएगा दे शुड, ठीक है, उन्होंने ज़रूरी काम करना है ना ये, तो दे शुड डस्ट द फर्नीचर दिस वीकेंड, उन्हें इस हफ्ते के इख्तिताम पर फर्नीचर साफ करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, दे डैश वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड, यहाँ पर आएगा ought to, सेकंड है ought to। थर्ड वन, दे डैश मेक देयर बेड्स, दे शुड मेक देयर बेड्स, तो शुड के ऊपर 3 भी लिख देते हैं। फोर्थ, दे डैश क्लीन लॉन्स एट दिस वीकेंड, तो यहाँ पर क्या आएगा ought to, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ought to। दे डैश वॉश डिशेस एट दिस वीकेंड, तो यहाँ पर आएगा दे शुड वॉश डिशेस एट दिस वीकेंड। फिफ्थ वन, सॉरी सिक्स वन, दे डैश वीड वेजिटेबल गार्डन, तो यहाँ आएगा ought to वीड वेजिटेबल गार्डन। सेवंथ वन, दे डैश ऑल्सो स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर, तो यहाँ पर आएगा शुड, they should also sweep kitchen and bathroom floor। Next, C question, change the doctor's command to be a patient into sentences with you must or you must not, one has been done for you। डॉक्टर की मरीज़ के लिए हदायत को you must और you must not के जुमलों में तब्दील करें। यहाँ पर एक जुमला बताया गया जैसा कि stay in bed for at least a week, तो डॉक्टर क्या कह रहा है कि यू मस्ट स्टे इन बेड फॉर एट लीस्ट अ वीक, हमने ऐसे ही इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। सेकंड, टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील, तो अगर हम इसको चेंज करें तो कैसे करेंगे, यू मस्ट टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील, ठीक है, यू मस्ट टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील। थर्ड वन, क्विट स्मोकिंग, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, you must quit smoking। Fourth, get more exercise, you must get more exercise। Don't have any visitor until Tuesday, you must not have any visitors until Tuesday। नेक्स्ट है बेटा प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़। डी क्वेश्चन, कंट्रैक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स, इमदादी फ़ेल को इख्तिसार से लिखना। कांट, शुडंट, मस्ट नॉट, couldn't, want, shan't, ought not, ठीक है, तो ये किसके ज़रिए किया जाता है, कॉलन। वी यूज़ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम, फॉर एग्जांपल मोना हैज़ द फॉलोइंग टास्क फॉर कमिंग वीकेंड, वाटर प्लांट्स, वॉश डिशेस एंड क्लीन लॉज। चीज़ों की फहरिस्त के तारुफ के लिए हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हमें लिस्ट के अंदर लिखनी हो या ज़्यादा चीज़ें हों तो उसके लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मोना को आने वाले इख्तितामी हफ्ते को दर्ज झेल काम करने हैं। अब वो दर्ज झेल काम कौन से हैं, पौधों को पानी देना, प्लेटें धोना और लॉन साफ करना। ई क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कॉलन, कॉलन का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है। वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स फॉर द चॉकलेट केक, फ्लोर, कोकोआ, बटर, एग्स, शुगर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। तो बेटा यहाँ पर जो केक है इसके बाद हम क्या लगा देंगे, 2 डॉट लगा देंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको पूरे फिक्रे को दोबारा से लिख सकते हैं। सेकंड, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कुकिंग यू कैन डू 3 थिंग्स, वो 3 थिंग्स कौन सी हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। रीड कुक बुक्स, गो टू कुकिंग क्लासेस एंड कुक एज मच एज यू कैन। थर्ड वन,
योर डिशेस विल बी जज अकॉर्डिंग टू 4 क्राइटेरिया। वो 4 क्राइटेरिया कौन से हैं? ये हैं टेस्ट है, लेवल, कुकिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन। तो क्राइटेरिया के बाद हम क्या लगा देंगे? 2 डॉट लगा देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स आई नीड टू परचेज फॉर द पार्टी। वो चीज़ें कौन सी हैं? बलून्स हैं, फूड है, ड्रिंक, गिफ्ट एंड प्लेट्स है। तो हम पार्टी के बाद क्या लगाएंगे? यहाँ पर कॉलन लगा देंगे। द contestants participated in the following games: क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। तो गेम्स के बाद क्या लगा देंगे? हम कॉलन लगा देंगे। नेक्स्ट वन इज अबाउट द राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। फर्स्ट वन, यू मे सिट हेयर, इसको अगर हम नेगेटिव में करें तो कैसे करेंगे? यू मे नॉट सिट हेयर। क्या कहेंगे? यू मे नॉट सिट हेयर, मे के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में करें तो मे को उठाकर स्टार्ट में ले जाएंगे, मे यू सिट हेयर, और लास्ट पे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। सेकेंड वन, शी कैन हेल्प हिम, अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, शी कैन नॉट हेल्प हिम, ठीक है। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो कैन को स्टार्ट में ले जाएंगे, कैन शी हेल्प हिम, और लास्ट पे क्या लगा देंगे? फुल क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन, यू मस्ट से हेलो नाउ, तो अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें तो हम लिखेंगे यू मस्ट नॉट से हेलो नाउ। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो मस्ट को स्टार्ट में ले जाएंगे, मस्ट यू से हेलो नाउ, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। दे शुड चेक एवरीथिंग, तो हम इसको क्या करेंगे? दे शुड नॉट चेक एवरीथिंग, तो शुड को स्टार्ट में ले जाएंगे, शुड दे चेक एवरीथिंग, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वन, यू माइट फाइंड द बुक इन द कबर्ड, यू माइट नॉट फाइंड द बुक इन द कबर्ड, और अगर हम इसको क्वेश्चन में चेंज करें, माइट यू फाइंड द बुक इन द कबर्ड, ठीक है। सिक्स वन, आई कैन बोरो योर बुक, तो यहाँ आएगा आई कैन नॉट बोरो योर बुक, और अगर कैन को स्टार्ट में ले जाएं, कैन आई बोरो योर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, मेक 3 रूल्स फॉर ईच ऑफ दीज प्लेसेस, यूज मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड और ऑट टू विच एवर इज अप्रोप्रिएट। इन तीनों मकामात में से हर एक के लिए 3 कवानीन बनाएं, दिए गए मॉडल वर्ब में से जो मुनासिब हो वो मॉडल वर्ब लगा दें यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट है लाइब्रेरी, क्लासरूम, ठीक है, इनके लिए। सो लाइब्रेरी के लिए, वी शुड कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट लाइब्रेरी स्टाफ, हमें लाइब्रेरी स्टाफ का एहतराम करना चाहिए। वी मस्ट कीप द लाइब्रेरी नीट एंड क्लीन, हमें लाइब्रेरी को साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्लासरूम, वी शुड स्टडी इन द क्लासरूम साइलेंटली, हमें क्लास के अंदर खामोशी से मुताला करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स, हमें अपने साजा की इज़्ज़त करनी चाहिए। वी मस्ट लिसन टू आवर टीचर्स एंड अटेंटिवली, हमें अपने साजा कराम को तवज्जो से सुनना चाहिए। नेक्स्ट है सी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 वर्ड्स ऑन माई एग्ज़ाम, फर्स्ट मेक अ माइंड मैप टू डेवलप फोकस ऑफ द पैराग्राफ। हाँ जी, माई एग्ज़ाम के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है? एक माइंड मैप बनाएं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद उसको फिलअप करें। तो अगर हम बेटा माई एग्ज़ाम के ऊपर पैराग्राफ लिखें तो कुछ ऐसा होगा, एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एग्ज़ाम जो है, इम्तहानात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे हेल्प मी टू इम्प्रूव माई नॉलेज, आई टेक स्पेशल इंटरेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माई एग्ज़ाम, I study throughout the year but when my exams come near I work very hard। मैं सारा साल मेहनत करता हूँ या स्टडी करता हूँ, लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई से फजर प्रेयर एंड देन स्टार्ट माई स्टडी, सबसे पहले मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर अपनी स्टडी या पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। फेयर ऑफ फेलर मेक मी अनहैप्पी, फेल हो जाने का जो खदशा है वो मुझे सैड या अनहैप्पी कर देता है। डैट इज़ वाई आई स्टडी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल रेगुलरली, इसी वजह से मैं अपनी टाइम टेबल के मुताबिक रोज़ाना या बाकायदगी से पढ़ता हूँ। आई से प्रेयर्स 5 times a day एंड प्रे फॉर माई सक्सेस इन द एग्ज़ाम, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ और अपने इम्तहान में कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की बेटा अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमने इसके अंदर जितना भी ग्रामर पोर्शन किया है, जितना भी हमने इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन किए हैं या क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है और होमवर्क के तौर पर उसकी प्रैक्टिस करनी है।
बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।